Okay, I hope you all are fine. Today we are going to study about fluoride and its role in prevention of dental caries. It is a very important chapter. इस चैप्टर में से आपके मिनिमम 2 to 3 SCQs आते हैं और MCQs भी बहुत आते हैं. Okay. After this session, you should be able to understand the history, the background of fluoride, its metabolism, its mechanism of action, and the methods how we can introduce fluoride to prevent dental caries. Now, what is fluoride? Fluoride is basically an element, a halogen group element, and it is used for the prevention of dental caries. It is either found in binded form or sometimes it is also found as fluoride ions. Fluoride plays a very important role in the prevention of dental caries. It is the most effective and most extensively tested operant anti-caries agent. It is one of the best armamentarium for prevention and control of dental caries. फ्लोराइड के ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है और ये बेस्ट मटेरियल है जो प्रिवेंट करता है डेंटल केरीज को. It is an extremely reactive member of halogen group of elements and it is found in nature in association with some other elements like calcium, known as fluorospar, calcium fluoride, and with calcium and phosphorus known as fluoroapatite, and with aluminium as cryolite. फ्लोराइड अकेला आयन की फॉर्म में भी मिलता है लेकिन मोस्टली ये बाइंडेड फॉर्म में मिलता है द डिफरेंट एलिमेंट्स. कैल्शियम के साथ बाइंड होगा तो फ्लोर स्पार उसको कहेंगे. अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ बाइंड होगा तो फ्लोरो एपिटाइट कहते हैं उसको. और अगर एल्यूमिनियम के साथ बाइंड हुआ होगा तो इसको क्रायोलाइट कहते हैं. Fluoride is found in most springs, wells, seawater and plants. Fluorides are present in trace quantities all surface and underground water. Mainly fluoride पानी में होता है, चश्मों में, sea water में और underground water में fluoride मिलता है. The concentration of fluoride is negligible in rainwater and high in some lakes and wells. Other sources are seafood, rock salt, tea leaves, leafy plants, in drinks, and in pharmaceutical products. So the main source of fluoride is water. Other than water, it is found in milk, seafood, rock salt, tea leaves, leafy plants, and drinks and some pharmaceutical products. So these were the sources of water, sources of fluoride. Now the estimate daily intake of fluoride. Two factors mainly contribute in the daily intake of fluoride is the fluoridated water and fluoride-rich foods such as fish or seafood is rich in fluorides. So आप two main sources से ले रहे हैं food and water से. The average daily intake of fluoride by adults from dry food substances the range is in the range of 0.2 to 1.8 milligrams. जो आप फूड से लेते हैं वो 0.2 to 1.8 milligrams होता है. The average daily intake from water is 1 parts per million of fluoride, which is about 1 milligram of fluoride in 1 liter of water. 1 parts per million fluoride in water means 1 mg of fluoride in 1 liter of water. The total daily intake for adults is 1.7 to 3.3 mg. ये रेंज वेरिएशन है इसमें. 1.7 से 3.3 mg टोटल डेली इंटेक होती है. ना जब फ्लोराइड बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होती है. Most fluorides are absorbed rapidly and transported in the body and subsequently excreted as fluoride ions. The rate of absorption increases with starvation and presence of fat. The presence of calcium, magnesium, and aluminium decrease with age.
एब्जॉर्प्शन मेनली आपकी बॉडी में 80% फ्लोराइड एब्जॉर्ब हो जाती है। जब आप स्टार्व कर रहे होते हो, स्टार्वेशन मोड में होते हैं, फैट डाइट ले रहे होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फैट में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है। वेरा जब कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के साथ फ्लोराइड का इंटेक हो तो उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। Most of the ingested fluoride are absorbed in digestive tract and in the blood. Only small unabsorbed is secreted in the feces. Circulating plasma fluoride is deposited to the teeth and bone and a very small amount to the soft tissue. Excreted via urinary system and sweat small amount in milk, saliva and digestive juices. फ्लोराइड मेनली जो आपका एब्जॉर्ब होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है और ब्लड में होता है. It is excreted mainly through your sweat and through kidney, and it is very less amount of fluoride is excreted through feces. मेनली जो आपका फ्लोराइड डिपॉजिट होता है आपकी बॉडी में वो आपके टीथ में और बोन्स में होता है. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इज डिपॉजिटेड इन सॉफ्ट टिश्यू. मेजर पाथवे ऑफ एक्सक्रीशन फ्लोराइड का आपकी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम होता है थ्रू किडनीज. Some amount is also excreted through sweat, but the main major pathway is through kidneys, through urinary system. Fluorides are excreted through the kidneys, gut and the skin. Fluoride have low solubility, therefore low absorption is excreted via gut. The concentration of fluoride in sweat is in the range of 0.067 to zero point 0.5 parts per million under normal conditions of intake. वही बात, it is mainly excreted through kidneys and sweat. Very small amount is excreted through the gut, and the amount of fluoride in sweat ranges from 0.067 to zero point 0.5 parts per million under normal conditions. The normal kidney will efficiently eliminate about 50% of the fluoride, which is presented to a glomerular filtration. It does not have access to all the fluoride to which an individual has been exposed. मेनली आपका वही बात बार बार रिपीट हो रही है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है 50% ऑफ द फ्लोराइड, बाकी स्वेट के थ्रू और बाकी मेनली किडनी, नेक्स्ट स्वेट और उसके बाद बाकी गट के थ्रू या और मीडियम्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है. Now fluoride, the role of fluoride in osseous tissue, bones. Fluoride ion have an affinity for skeletal minerals and can be incorporated in it during growth. Even in the absence of growth, it is ultimately incorporated by replacement of hydroxyl ions in the mineral of bone, hydroxyapatite. फ्लोराइड ड्यूरिंग ग्रोथ आपकी बोन्स में डिपॉजिट होता है, मेनली ड्यूरिंग ग्रोथ होता है, लेकिन आफ्टर ग्रोथ भी some minor amount of fluoride is transported to the bone. Fluoride concentration in bone tissue depend on the amount of fluoride ingested in food and water, and to lesser extent the amount inhaled in air, and on the length of time the individual has ingested fluoride. The fluoride can be deposited in either the adsorbed layer of bone, crystal structure and bone matrix. फ्लोराइड जो है वो बोन की 3 लेयर्स होती हैं, एब्जॉर्ब लेयर ऑफ बोन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बोन मैट्रिक्स. इनमें से किसी में भी डिपॉजिट होता है. मेनली जो फ्लोराइड की डिपोजिशन है और एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करती है द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड विच इज इंजेस्टेड. जितना इनटेक होगा एब्जॉर्प्शन होगी, विच इज मेनली इंजेस्टेड थ्रू फूड एंड वाटर. फ्लोराइड एयर में बहुत कम अमाउंट में होती है. मेनली जो आपका सोर्स ऑफ फ्लोराइड होता है वाटर और फूड ही होता है. Now the history and background of fluoride. The man who had the greatest impact on the early history of water fluoridation was Dr. Frederick Mackay, who arrived in Colorado Spring in Colorado in 19
1901, he noticed that many of his patients, it is just like a story, इसको एक story की तरह आप read करें. He noticed that many of his patients, particularly those who have lived in the area all their lives, had apparently permanent stains on their teeth, which was known to the local inhabitants as Colorado stain. डॉक्टर मैके कोलोराडो जब 1901 में गए तो उन्होंने नोटिस किया अपनी प्रैक्टिस में कि जो मेनली वहाँ के पेशेंट्स हैं, लोग हैं, उन सब के टीथ स्टेन्ड हैं और उस स्टेनिंग को अपने वो जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे उसको एज कोलोराडो स्टेन के नाम से उसको कहते हैं कि कोलोराडो स्टेन है जो सब लोगों के टीथ में मौजूद है. Whereas Dr. Mackay called it as mottled enamel. आप सबने enamel की ये फ्लोरोसिस की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इंडेक्स पढ़ा है, आप लोगों को आइडिया तो है कि फ्लोरोसिस देखने में कैसा होता है. फ्लोरोसिस जैसा स्टेन था, लेकिन उसको अपने लोकल इनहेबिटेंट्स उसको कोलोराडो स्टेन कहते थे. वेराज डॉक्टर मैके वाइट लेजन्स भी होती हैं और लेटेस्ट स्टेज पे उसकी येलो लाइंस, येलो स्टेन्स भी पड़ जाती हैं फ्लोरोसिस में. डॉक्टर मैके named it as mottled enamel. It was characterized by minute white flecks or yellow-brown spots or areas scattered regularly or streaked over the surface of the teeth. It may be a condition where the entire tooth surface is a dead paper white like the color of a china dish. अच्छा, जो स्टेन्स थे उसमें वेरिएशंस थी. वो माइनर फ्लोरोसिस भी हो सकती थी, वाइट फ्लेक्स भी हो सकते थे, या उसमें येलो ब्राउन स्पॉट्स भी हो सकते थे, या वो प्लेन डेड पेपर लाइक टूथ भी हो सकता था. Mackay approached one of the American foremost authority on dental enamel, Dr. Black. At first, Black thought that Mackay was mistaken the stain of something else. Then he asked him to collect some of the mottled teeth and send him for examination. डॉक्टर मैके ने जब ये ऑब्जर्व किया फिर वो डॉक्टर ब्लैक के पास गए. ही वॉज द मेन अथॉरिटी एट द टाइम इन अमेरिका. उनको बताया कि इस तरह इस एरिया में, कोलोराडो के एरिया में बहुत ज़्यादा स्टेनिंग है टीथ में. फिर डॉक्टर ब्लैक ने कुछ टीथ मंगवाए अपने पास टू एग्जामिन देम. दे इंस्पेक्टेड 2,945 children and discovered that 87.5% of the children native to that area had mottled teeth. Almost 3,000 children were examined किए, उसमें से 88%. Mackay discovered that the people from parts of the Naples in Italy also had this stain. फिर 1912 में मैके ने डिस्कवर किया कि नेपल्स में, इटली में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे लोगों के ऐसे स्टेन्ड टीथ हैं. He requested a doctor over there, who was basically from Colorado, to examine the Naples children and report back. उन्होंने इस पूरे एरिया को मैप किया. In preparation of this visit, as a first step in mapping out the entire endemic area, Mackay and a fellow Dr. Isaac examined the children in public schools of Colorado Springs. The doctor was familiar with the stain in Colorado Springs and wrote back from Naples that there was no doubt that the mottled teeth in Naples were the same as those being investigated by Mackay. अच्छा, अब मैके ने एग्जामिन किया था कोलोराडो में स्टूडेंट्स में वो स्टेन कॉमन जो था, वो एक और डॉक्टर ने जाके नेपल्स इटली में भी नोटिस किया कि वो स्टेन वहाँ पे भी एक एरिया में बहुत एंडेमिक है. When they saw that stain, he asked them to examine and report back. बेटे म्यूट कर दें अपना, जिसका भी माइक ऑन है ना वो म्यूट कर दे. जब वहाँ से नेपल्स में से इटली से डॉक्टर ने वापस रिपोर्ट बैक किया तो इट वाज द सेम स्टेन जो कोलोराडो में था और वहाँ इटली में भी कुछ एरिया में एंडेमिक था.
Eventually, the sustained work of Mackay was rewarded in 1930 when fluorine was established to be the cause of enamel mottling. 1913 में it was discovered that fluorine is the main cause behind the enamel mottling. Trenley Dean was assigned the job to continue Mackay's work and to find out the extent of geographical distribution of mottled enamel in यूनाइटेड स्टेट्स। फिर डीन ने जो डीन फ्लोरोसिस इंडेक्स में हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा इंडिसेस में, ही फर्दर मार्क द एरिया इन विच फ्लोरोसिस वाज endemic. Dean established that concentration of fluoride in drinking water was directly related with severity of fluorosed enamel. Dean in 1936 presented additional evidence to show that fluorine up to 1 parts per million in drinking water was not hazardous to public health. फिर डीन ने वो एरिया मार्क किया और वहाँ पता चला कि जो ड्रिंकिंग वाटर है दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ the mottled enamel, and he also ruled out that if 1 parts per million of fluorine is present in water and that is used for drinking, that has no harmful effects to the public. Dean also observed that in children taking 6 to 1.5 parts per million, only 4 to 5% were caries free. Those who used 1.7 to 2.5 parts per million were 22% caries free, and he concluded that there is possibilities in controlling dental caries through domestic water supply containing fluoride. A service of studies conducted in USA revealed that areas with water supplies containing no fluoride DMFT ranged from 6 to 10. अच्छा, अब डीन ने ये एक तो ये लगाया कि ये जो मॉटल्ड एनामल था इट वाज बिकॉज ऑफ द फ्लोराइड इंक्रीज्ड फ्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर. आफ्टर दैट ही कंक्लूडेड दैट अगर पानी में 1 पार्ट्स पर मिलियन fluoride है, it is not harmful for the health. And he also concluded that presence of small amount of fluoride in the water is basically preventive measure for dental caries. The DMFT is decreased in those areas where there is around 1.7 to 2.5 parts per million of fluoride is present in the water. In those areas containing 1 parts million of fluoride, the DMFT range between 2 and 3. जिस एरिया में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता था पानी में, वहाँ पे DMFT लेस होता था, और जहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट कम होता था पानी में, वहाँ पे DMFT की वैल्यू बढ़ जाती थी. Thus, the above series of findings contribute factual information on the beneficial role of fluoride on dental caries, which paved the way towards implementation of water fluoridation as a public health measure globally. इसको अब हम शॉर्टकट स्टोरी बना के अंडरस्टैंड करते हैं कि डॉक्टर फ्रेडरिक मैके ने जब वो कोलोराडो गए तो उन्होंने देखा कि कोलोराडो में जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ एक स्टेन कॉमन है उनके टीथ में, आइदर इट इज ऑफ वाइट कलर और ब्राउन कलर. He asked Dr. Black to examine those teeth, examine the teeth of the people of Colorado, and when they examined, there were 87 to 88% of the children were having those stain on their teeth. Then this stain was also found in Naples in Italy. वहाँ पे भी डॉक्टर ने जब एग्जामिन किया तो it was the same stain which was in Colorado Springs. That it was ruled out by Dr. Mackay that it is because of the increased amount of fluoride in the water in that area. फिर डॉक्टर डीन ने फर्दर कंक्लूजन निकाली कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लोराइड पानी में हो और कितना ना हो तो वो हैजर्डस है. उसमें ये कंक्लूजन निकली कि 1 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड अगर प्रेजेंट है पानी में तो वो प्रिवेंटिव है, इट हैज़ अ प्रिवेंटिव इफेक्ट ऑन dental caries, whereas less than this amount of fluoride in the water has no effect
but it is not preventive. And more than 3 parts per million of water is basically it causes फ्लोरोसिस. ज़्यादा फ्लोराइड भी पानी में होना नुकसान है. कम होने से नुकसान ये कि आपके डीएमएफटी का रेंज बढ़ जाएगा. ज़्यादा होगा तो फ्लोरोसिस हो जाएगा. टीथ में भी फ्लोरोसिस हो जाएगा, स्केलेटल फ्लोरोसिस बोन में भी हो जाएगा. तो दिस वाज ऑल. फिर डॉक्टर डीन के इस स्टडी से ये कंक्लूजन निकला कि पब्लिक हेल्थ फ्लोराइड को पानी में ऐड करना एज अ पब्लिक हेल्थ measure. If we add fluoride in water, it can prevent dental caries. अब पब्लिक हेल्थ मेजर बन गया, फ्लोराइड को ऐड करना ये रूल आउट हो गया, तो फ्लोराइड पानी में होना ज़रूरी है. अब पानी में उसको कैसे, या फ्लोराइड को फूड के थ्रू या पानी के थ्रू पब्लिक हेल्थ तक कैसे पहुंचाया जाए. नाउ दे आर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लोराइड रूट्स बाय विच द फ्लोराइड इज एडमिनिस्टर्ड इन द डाइट. एक रूट है सिस्टेमिक और एक रूट है टॉपिकल. सिस्टेमिक आपको पता है कि सिस्टेमिकली आप उसको देते हो, अब वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है. टॉपिकली मीन्स कि आप उसको टॉपिकली टूथ पे अप्लाई करा करते हो. सिस्टेमिकली हम वाटर फ्लोरिडेशन करते हैं, मिल्क फ्लोरिडेशन करते हैं, सॉल्ट फ्लोरिडेशन करते हैं, फ्लोराइड ड्रॉप्स देते हैं, फ्लोराइड टैबलेट्स देते हैं, फ्लोराइड लॉजेंजेस देते हैं. देयर टॉपिकली हम सोडियम फ्लोराइड यूज़ करते हैं, स्टेनस फ्लोराइड यूज़ करते हैं, एसिडुएटेड फॉस्फेट फ्लोराइड यूज़ करते हैं, फ्लोराइड वार्निशेस होती हैं, फ्लोराइड डेंटिफाइज होता है, फ्लोराइड माउथ रिंजेस यूज़ करते हैं. अभी तक आपको कोई बात ना समझ आई हो तो मुझे बता दें, फिर हम वाटर फ्लोराइडेशन करेंगे. अभी तक हमने ये पढ़ लिया, हमने सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड देख ली. हमने देख लिया कि फ्लोराइड मेनली वाटर में होता है, उसके बाद फूड में होता है, लाइक मेनली इन सी फूड, मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, टी. इन चीज़ों में फ्लोराइड. हमने सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड देख ली. हमने एक्सक्रीशन देख ली कि एक्सक्रीशन फ्लोराइड की मेनली इट इज थ्रू किडनीज, आफ्टर दैट स्वेट, एंड आफ्टर स्वेट गट के थ्रू, मिल्क के थ्रू इस तरह एक्सक्रीट हो जाती है. फिर हमने हिस्ट्री देख ली, उसमें हमने डॉक्टर मैके का रोल, डॉक्टर डीन का रोल देख लिए. हमने देख लिया कि फ्लोराइड अब एक पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी है टू इम्प्रूव द और टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ केरीज इन पब्लिक. अब हमने फ्लोराइड एडमिनिस्टर कैसे करनी है. कुछ अभी तक समझ ना आया तो मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देती हूँ. Now the modes of administration of fluoride are systemic and topical. As you all know, systemically हम water fluoridation से करेंगे, और okay, now systemic fluorides में mainly आ जाता है water fluoridation. What is water fluoridation? तो माजिद आपने कुछ पूछना है? ये मैं अभी लेक्चर खत्म करके ना मैं आपसे टेस्ट की बात करती हूँ, ठीक है? अच्छा, ना व्हाट इज वाटर फ्लोरिडेशन? Water fluoridation is the controlled adjustment of the fluoride ion content of a domestic water supply to the optimum physiologic concentration and to provide maximum protection against dental caries and enhance the appearance of the teeth with the minimal possibility of producing objectionable enamel fluorosis. This is the definition of water fluoridation. इसमें हमने करना क्या होता है, व्हाट इज वाटर फ्लोरिडेशन? हम कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड आयन करते हैं डोमेस्टिक, जहाँ से डोमेस्टिक वाटर सप्लाई हो रही होती है. इसकी पिक्चर देख लेती हूँ अगर कोई. For example, this is the path from which domestic water supply is being applied. Controlled adjustment of fluoride in the domestic water. कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट होगी, ये नहीं होगी कि इकट्ठे सारी फ्लोराइड डाल देंगे. कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड इन द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई
to provide maximum protection against dental caries and enhance the appearance of the teeth. This is water fluoridation. Now, what are the optimum levels of fluoride in water? The optimum levels of fluoride for water in temperate climates 1.1 parts per million for warmer and colder climates. The amounts can be adjusted approximately from zero point 0.7 to 1.2 parts per million, adapted in accord with the amount of water consumed. आपने अपने माइंड में 1 parts per million of water रखना है. 1 parts per million of fluoride in water. A concentration of 1 parts per million amount is 1 mg of fluoride per liter. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. 1 parts per million means 1 mg of fluoride per liter. ये आपका MCQ आ जाता होता है. 1 parts per million of fluoride का क्या मतलब है? It is 1 mg of fluoride per liter. This is the optimum amount of fluoride which is required. Now the choice of equipment for fluoridation. The choice of equipment and of fluorides to be used depends upon the cost and installation, maintenance and surveillance. अब हम equipments कौन से यूज़ करेंगे fluoridation के लिए and fluoride कौन सा यूज़ करेंगे, ये mainly 3 चीज़ों पे depend करता है. एक तो cost, इक्विपमेंट की, फ्लोराइड की, उसको इंस्टॉल करने का तरीका, उसको मेंटेन कैसे करना है और उसकी सर्वेलेंस कैसे करनी है, उसको मॉनिटर कैसे करना है. जो जनरल क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं फॉर दिस सिस्टम, इट इज़ द इक्विपमेंट मस्ट बी अडेप्टेड टू द लोकल कंडीशंस एंड नीड्स ऑफ वाटर नेटवर्क. जो इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे वो जिस लोकल एरिया में हम यूज़ कर रहे हैं उसको माइंड में रख, उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए और जो वाटर नेटवर्क है उस एरिया का उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए. इक्विपमेंट मस्ट बी एफिकेशियस, सेफ एंड प्रिसाइज. एफिशिएंट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए. इट शुड हैव वेल डिफाइंड प्रिसीजन लिमिट्स. वेल डिफाइंड प्रिसीजन लिमिट्स का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं जो फ्लोराइड इन जहाँ से हम जिस भी इक्विपमेंट के थ्रू फ्लोराइड वाटर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में जा रहा है उसकी प्रिसाइज लिमिट्स होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि फ्लोराइड जहाँ से एकदम ज़्यादा चला जाए पानी में या कम चला जाए, उसकी प्रिसीजन उसकी प्रॉपर लिमिट्स में जाना चाहिए. इक्विपमेंट कौन कौन सा यूज़ होता है? देयर 5 मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स. वन इज सैचुरेटेड सिस्टम, ड्राई फीडर, सोल्यूशन फीडर, वेंचुरी फ्लोरिडेटर सिस्टम, saturation, suspension, cone. These are the 5 systems. बस इनके इसके नाम आप लोगों ने याद कर लेने. अच्छा, ये इक्विपमेंट हो गया, ये इक्विपमेंट यूज़ होता है. और फ्लोराइड जो वाटर फ्लोरिडेशन में यूज़ होती है वो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सिलिकोफ्लोराइड एंड हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड. ये 3 टाइप्स की फ्लोराइड यूज़ होती है. सो नाउ वी हैव रेड द इक्विपमेंट यूज़. पहले तो हमने ये देखा कि इक्विपमेंट और फ्लोराइड जो है वो किन मेन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है. फिर हमने देखा कि इक्विपमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, आपने बस नाम याद करने. फिर हमने देखा वाटर फ्लोरिडेशन में फ्लोराइड्स कौन सी यूज़ होती हैं. ये 3 टाइप्स ऑफ फ्लोराइड्स होती हैं जो वाटर फ्लोरिडेशन में यूज़ होती हैं. ओके, सोडियम, we'll study the fluorides in detail. Sodium fluoride, it is used in saturated system to avoid obstruction of gravel bed. Used in granular form, available in 45 kg bags and it is expensive. हमने जब environment वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने वाटर में ग्रेवल बेड पढ़ा था. ग्रेवल बेड वो होता है जो सपोर्ट करता है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को. बेसिकली सोडियम फ्लोराइड हम सैचुरेटेड सिस्टम में यूज़ करते हैं सो दैट इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द ग्रेवल बेड. ये ग्रैन्युलर फॉर्म में होता है, 45 kgs के बैग्स आते हैं और ये एक्सपेंसिव होता है. सोडियम सिलिकोफ्लोराइड ये 45 kgs के बैग्स में आता है और ये चीपेस्ट होता है, सबसे सस्ता सोडियम सिलिकोफ्लोराइड होता है. हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड is basically in the form of liquid. It is delivered by tanker and the capacity of that tankers is 19,000 liters. ये सोडियम फ्लोराइड से एक्सपेंसिव होता है.
सोडियम फ्लोराइड से लेस एक्सपेंसिव होता है, सोडियम सिलिका फ्लोराइड से एक्सपेंसिव होता है, ये दरमियान में आता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं वाटर फ्लोरिडेशन के? Teeth exposed to this level of fluoride are clear, white, shining, opaque, and without any blemishes. There's reduction of dental caries. 40 to 50% of reduction is in primary teeth, and 50 to 60% of reduction in permanent teeth. The incidence of root caries is reduced by 50%. There's 75% reduction in the extraction of first molars in the areas where fluoridated water is supplied. अच्छा, 75% रिडक्शन मीन्स कि जो फर्स्ट मोलर है वो 75% लेस एक्सट्रैक्शंस होती हैं। फर्स्ट मोलर की एक्सट्रैक्शन क्यों ज़्यादा होती है? फर्स्ट मोलर की एक्सट्रैक्शन इसलिए ज़्यादा होती है कि वो सबसे पहले इरप्ट होता है, और उसकी जब उसको फ्लोराइड नहीं सप्लाई किया जाता तो उसमें सबसे पहले केरीज लगती हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रोन होता है केरीज को, और उसकी एक्सट्रैक्शन भी सबसे पहले हो जाती है। इसलिए हम अक्सर जगहों पे फर्स्ट परमानेंट मोलर को एज अ एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले इरप्ट होता है, सबसे ज़्यादा केरीज के चांसेस उस टीथ में होते हैं। तो जहाँ पे प्रॉपर फ्लोराइड सप्लाई की जाती है थ्रू वाटर, वहाँ पे 75% लेस रिडक्शन होती है on in the extraction of first molars. Orthodontic problems are approximately 20% less in 6 to 14-year-old children in the areas where there is fluoride in water. There is about 90% less prevalence of interproximal dental caries and a reduction of 60% coronal caries in fluoridated communities as compared to those of non-fluoridated communities. 90% लेस रिडक्शन लेस होती हैं इंटरप्रॉक्सिमल केरीज, एंड 60% कोरोनल केरीज में रिडक्शन होती है। मोस्ट इकोनॉमिकल इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है केरीज प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, वाटर फ्लोरिडेशन फिजिबल किन केसेस में होती है? अब हमने वाटर फ्लोरिडेशन तो कर दी, हमें पता चल गया कि हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, कौन सा फ्लोराइड यूज़ करेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसको फिजिबल बनाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट that there is a municipal water supply reaching a reasonable number of homes. People drink this water rather than water from individual wells or rainwater tanks. अब ये सब पॉसिबल किन केसेस में? एक तो प्रॉपर म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई हो जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लोराइड ऐड हो रही हो, और वही पानी कम्युनिटी वाले यूज़ कर रहे हैं। अगर हर बंदा अपना इंडिविजुअल वेल्स और टैंक्स से पानी पी रहा है तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। Proper equipment present हो, there should be a constant supply of fluoride in the domestic water supply, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वर्कर्स अवेलेबल इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू मेंटेन द सिस्टम एंड कीप रिकॉर्ड। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है जहाँ से डोमेस्टिक वाटर सप्लाई हो रही होती है, वहाँ के वर्कर्स को प्रॉपर मेंटेनेंस करनी चाहिए। and money should be available for initial installment and running cost। initial installment के लिए सारे equipment का, fluoride का money available होना चाहिए। Fluoridation is feasible but is not implemented for political reasons. In view of good results achieved in those countries where it is being used extensively for many years, water fluoridation must always be considered as a public health measure. Not only it is safe, but water fluoridation by far the most effective and efficient method of bringing the benefits of a continuous low concentration of fluoride to the whole community. बस इसमें यही बताया हुआ है कि इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ मेजर। अगर हम वाटर फ्लोरिडेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रिवेंट कर सकते हैं डेंटल केरीज को। लेकिन ये तब भी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब वहाँ के एरिया में कोई पॉलिटिकल इश्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक
हेल्थ हैजर्ड मानते हैं फ्लोराइड को वाटर में प्रेजेंट होने का। इसको रिजेक्ट क्यों करते हैं लोग? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड कंफ्यूजन, बिकॉज दे हैव कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है टेक्निकली प्रूफ करने के लिए कि फ्लोराइड क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे एरियाज में लोग इसके अगेंस्ट रैली, इंटरनेशनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये हमने पढ़ ली वाटर फ्लोरिडेशन। अब वाटर फ्लोरिडेशन ये हम डोमेस्टिक पे देख रहे थे, अब हम स्कूल लेवल पे देख लेंगे। हाँ, एक ना फ्लोरिडेशन का मसला ना काफ़ी एरियाज़ में, जिस तरह ये भावलपुर, मुल्तान, आई डोंट नो आप कहाँ से बिलोंग करती हो, लेकिन इन जगहों पे पानी में फ्लोराइड वैसे ही बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे जो जाए या वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो टूथपेस्ट ऐसे यूज़ करें जिसमें फ्लोराइड ना हो। कुछ एरियाज़ में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए फिर ये मसले होते हैं। ओ, अच्छा, now water fluoridation in schools. It was first initiated as a pilot study in 1954 in United States, one of the several effective alternatives for prevention of dental caries in children of communities were water fluoridation. When it was not feasible, fluoridation is not feasible in school water supply. It can be used only if the surrounding areas from which the students come have a low fluoride content. Schools are ideal since all grades are housed in the same building. The concentration of fluoride in the school water system is 4.5 parts per million in contrast to 1 parts per million. अच्छा, स्कूल वाटर सप्लाई में क्या होता है कि जिन एरियाज़ में बाकी जगहों पे फ्लोराइड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में नहीं जा रहा होता, वहाँ पे हम ये करते हैं कि स्कूल में वाटर फ्लोरिडेशन कर देते हैं। वहाँ नॉर्मल डोमेस्टिक वाटर सप्लाई जो है उसमें 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड होता है, वेयर स्कूल वाटर सप्लाई जो होता है वहाँ पे 4.5 पार्ट्स पर मिलियन कर देते हैं, इन कंट्रास्ट टू द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई विच इज़ 1 पार्ट्स पर मिलियन। इसलिए क्योंकि स्कूल में बच्चे का टाइम कम गुजरता है, स्टूडेंट स्कूल में कम टाइम के लिए आते हैं, कम पानी पीते हैं, वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वो पानी ज़्यादा लेंगे, पानी कम भी लेंगे तो फ्लोराइड उनके अंदर ज़्यादा जाएगा, और इस तरह डीएमएफटी जो है उसकी रेंज कम होगी स्टूडेंट्स में। This upward adjustment is to compensate for reduced water since the school day and year is shorter. ये ग्रेटर एडवांटेज है, इसमें लेस एफर्ट रिक्वायर्ड है। डीएमएफटी ऑलमोस्ट 40% रिड्यूस हो गया था उन एरियाज में जहाँ पे स्कूल वाटर में फ्लोरिडेशन की गई थी और उस क्लोराइड का कंटेंट 5 पार्ट्स पर मिलियन तक रखा गया था। प्रॉब्लम्स क्या आई? Any effort to fluoridate the school system is subjected to possible confrontation by anti-fluoridation group. पहले तो ये कि जो political groups हैं जो anti fluoride हैं उनकी तरफ से मिलती है। The cost of the installation, supplies and maintenance competes with other heads of the school budget. School budget आपका disturb हो जाता है, ज़ाहिर है आपने वहाँ पे कि स्कूल में भी इंस्टॉल करना है इक्विपमेंट। Custodial and backup must be हो जाती है schools में। The major concern, however, is by age 6, all teeth except third molars are in an advanced stage of mineralization, thus reducing the pre-eruptive benefits of fluoride. एक जो मेन कंसर्न था वो ये था कि बाय एज 6 आपके थर्ड मोलर्स के अलावा बाकी सारे जो टीथ हैं वो मिनरलाइजेशन की एडवांस स्टेज पे होते हैं। प्री इरप्टिव फेज में जो बेनिफिट फ्लोराइड दे सकता है उस स्टेज से वो निकल चुके होते हैं। These were the 4 problems which were faced in school water fluoridation. बस मेनली आपने स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन में यही बात याद करनी है कि it was recommended so that the students which are coming from the areas where there is less fluoride in water, वहाँ पे स्कूल वाटर सप्लाई में
4 to 5 parts per million ऑफ फ्लोराइड इनिशिएट करा के वो DMFT अपना रिड्यूस कर सकते हैं। ये ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट स्कूल वाटर में किस लिए डाला जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कम टाइम के लिए स्कूल में रह पड़ी थी। स्कूल में एज वहाँ के लिए स्कूल के लिए हमारे पास अलग इक्विपमेंट होना चाहिए था, मैन पावर होनी चाहिए थी, एंटी फ्लोराइड ग्रुप्स की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन में। द सेकेंड form of fluoridation is salt fluoridation, which is a systemic fluoridation possible. This program was first introduced potassium 90 mg of sodium fluoride per kg. जहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं होती फ्लोराइड की, वहाँ पे सॉल्ट फ्लोरिडेशन वॉज एन इफेक्टिव मेथड। इसमें हम सॉल्ट में कुछ अमाउंट ऑफ फ्लोराइड ऐड कर देते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या थी? द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लोरोसिस डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। ओके, सॉल्ट फ्लोरिडेशन होगी। द थर्ड फॉर्म इज मिल्क फ्लोरिडेशन। Milk is a reasonable vehicle for fluoride since it is a food used universally by infants, pregnant women, and children. Milk is an excellent source of calcium and phosphorus, and when fortified with vitamin D, contains all essentials for the development of bones and teeth. Ziegler first mentioned fluoridation of milk in 1956. ये आपको सारी बातें पता है? ये मिल्क में कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? मेनली ये बच्चों का मेन डाइट मिल्क ही होती है। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लोराइड from milk and water indicates a significant reduction in the fluoride absorption from milk during the first hour, but thereafter absorption continues at high level for longer periods. When milk is fluoridated, most of the fluoride persists in the ionized form for the first 4 hours. Thereafter, about one-fifth is bound to calcium and protein. तो इसमें ये बताया हुआ है कि फर्स्ट आवर में जो एब्जॉर्प्शन होती है मिल्क से वो कम होती है, उसके बाद आफ्टर द एब्जॉर्प्शन द लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। मेनली इसमें यही है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये स्टेपल फूड है चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में। तो बच्चों में जो रीमिनरलाइजेशन स्टेट होती है जिसमें दांत बन रहे होते हैं, उसमें इसके फ्लोराइड के एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। बट डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिडेटेड मिल्क वुड बी कंसिडरेबली हाई। सेंट्रलाइज्ड मिल्क सप्लाई शुड एग्जिस्ट। वेरिएशन इन इनटेक एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। एक तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, सेंट्रलाइज आप सारे मिल्क को नहीं कर सकते, फ्लोराइड ऐड नहीं कर सकते, उसमें डिफरेंट सप्लाई होती है मिल्क की। इनटेक ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क, हर बंदा मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदा मिल्क नहीं ले सकता, तो वेरी करता है इनटेक मिल्क का पर्सन टू पर्सन। आफ्टर दैट द सिस्टमिक intake of fluoride is through fluoride tablets, which provide systemic effects before mineralization of primary and permanent degeneration and a topical effect thereafter. Fluoride tablets से आपका systemic भी होता है, topical effect भी होता है। When
Fluoride administration in the form of tablets was started before 2 years of age and continued for a minimum of 3 to 4 years. Caries reduction in the range of 50 to 80% have been reported. जब फ्लोराइड 2 years की एज से स्टार्ट की गई थी टैबलेट्स देना तो उससे हुआ ये था कि 50 to 80% रिडक्शन थी केरीज में. Majority of the studies showed from no marginal reduction to 20 to 40% reduction in caries, and fluoride must be ingested systemically in order to exert maximum karyostatic effect during the mineralization of the surface of ground. वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि मिनरलाइजेशन से पहले या ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन फ्लोराइड सिस्टेमिकली दे देनी चाहिए so to have minimum caries. Fluoride tablets are mainly available as sodium fluoride tablets of 2.2 mg, 1.1 mg, and 0.55 mg, yielding 1 mg, 0.5 mg, and 0.25 mg of fluoride respectively. सोडियम फ्लोराइड की फॉर्म में टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं जिनकी 2.2 mg की टैबलेट्स अवेलेबल हैं जिसमें फ्लोराइड 1 mg, 1.5 mg की टैबलेट अवेलेबल है जिसमें फ्लोराइड कंटेंट 0.5 mg होगा, 0.55 mg की टैबलेट्स अवेलेबल है जिसमें फ्लोराइड कंटेंट 0.25 होगा. Fluoride tablets with vitamins combination are also available. The best topical effect fluoride tablet should be first chewed and then swallowed. पहले हम ताकि वो सारे टॉपिकली हर पे जस्ट टेक्निक को हम क्या कहते हैं स्विश एंड swallow टेक्निक. स्विश एंड swallow टेक्निक बेसिकली यही होती है कि पहले the child will chew the tablets and then they will swish the saliva between the teeth for a minute before swallowing. In this way, it will provide both topical and systemic effect. पहले आप जो भी चाइल्ड है उसको टेबलेट दें, उसको कहीं च्यू करें, फिर सलाइवा के थ्रू स्विश पूरे अपने टीथ पे रोटेट करें, फिर उसको swallow करें so that we can both the समझ आ गई ना solution. Recommended dose of fluoride for children below 2 years is 0.5 mg, between 2 to 3 years is 0.5 to 0.7 mg, and above 3 years is 1 to 1.5 mg. Advantages क्या है इसके? They are ready for use, requires little time to dispense. Some tablets have flavor, so they enhance the child motivation to participate in the ingestion of fluoride tablet. The other form is fluoride drops. Fluoride drops are used to supplement fluoride intake until a child ले सकता. प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल होती है उसमें से आप 10 ड्रॉप्स जो है वो 1 mg ऑफ फ्लोराइड के इक्वल होते हैं तो आप 10 ड्रॉप्स चाइल्ड को दे देते हैं. 10 drops are placed in a liter of water containing low fluoride. There is a resultant of concentration of 1 parts per million of fluoride. जब आप 10 drops देते हैं 1 liter of water में तो वो 1 parts per million fluoride बन जाता है. नॉर्मल सप्लाई जो normal fluoride content जो water में use होता है. The use of drops can be expected to produce a caries reduction on the order of 40%. 40% caries reduction करता है. Parents should be cautioned to use the prescribed number of drops and not assume that because one drop is effective, two will be better. अच्छा पहली 7 डाल लेंगे तो ज़्यादा केरीज प्रिवेंट हो जाएंगी. इट कैन बी prescribed अमाउंट है उतनी यूज़ करनी. 10 drops in 1 liter of water. Now the mechanism of action of systemic ये भी कवर हो सकता है कि नहीं हो सकता. अच्छा the
स्टैटिक इफेक्ट ऑफ सिस्टेमिक फ्लो। अभी यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर हो गया? हमने उसकी एक्सक्रीशन पढ़ी, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, फ्लोराइड पढ़ी, ये हमने मेनली चीज़ें पढ़ ली। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने लगे। The charismatic effect of systemic fluorides can be explained under the following heading: rendering enamel more resistant to acid dissolution, inhibition of bacterial enzyme by reducing modification in the size and shape of Class, can you hear me? Okay. Now, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पहला पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में रेंडरिंग एनामल मोर रेजिस्टेंस टू एब्लूजन। हमें ये तो पता है कि डेंटल केरीज कैसे होती हैं। डेंटल केरीज ऐसे होती हैं कि एनामल डिसोल्यूशन होती है बाय द एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल प्लैक। और फ्लोराइड का क्या काम होता है कि फ्लोराइड उसको इनहिबिट करती है, डिसोल्यूशन नहीं होने देती है, एनामल की केरीज नहीं होने देती बाय इनहिबिटिंग द डिसोल्यूशन ऑफ एनामल थ्रू बैक्टीरियल प्लैक और एसिड फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल प्लैक। वो होता कैसे कि फ्लोराइड फ्लोरोएपेटाइट क्रिस्टल्स बना देती है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, नॉर्मल हमारा जो ट्रुथ स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, उसकी जगह वो फ्लोरोएपेटाइट क्रिस्टल्स बना देती है विच आर लेस सॉल्युबल, and it has been thought that the anti-caries effect of fluoride is the result of reduced solubility. फ्लोरोएपेटाइट क्रिस्टल जो है वो लेस सॉल्युबल होते हैं, उसकी डिसोल्यूशन कम होती है और केरीज नहीं होती। द डिसोल्यूशन ऑफ एनामल ड्यूरिंग अ केरीज अटैक is a complicated process. When enamel is exposed to pH of about 5.5 or lower, it is dissolved. जब एसिड प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से, उसकी पीएच कम होती है, एनामल डिसॉल्व होने शुरू हो जाता है। The concentration of calcium, phosphate and other ions in the solution will increase. When the plaque stops producing acid, the pH rise and the dissolved mineral get precipitated. The scariest dissolution of enamel is a cyclic phenomena consisting of phase of demineralization and re-precipitation. इसमें बेसिकली होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट और बाकी जो आयंस होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है सोल्यूशन में, और जो बेसिकली एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन होती है। जब फ्लोराइड प्रेजेंट होगी तो पीएच हाई रहेगी जिसकी वजह से डिसोल्यूशन नहीं होगी। The presence of fluoride reduces the solubility of enamel by promoting the precipitation of hydroxyapatite and phosphate minerals. ये मैं आपको डिटेल में भी बताती हूँ। When hydroxyapatite crystal is exposed to low fluoride concentration of about 1 parts per million, a layer of fluoroapatite forms on the hydroxyapatite crystals. This thin layer governs the rate of dissolution. अब होता है कि जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं टूथ में हमारे, जब उसके ऊपर फ्लोराइड की लेयर बन जाती है, फ्लोरोएपेटाइट लेयर बन जाती है तो उसकी रेजोल्यूशन नहीं हो सकती। मेनली आपने ये याद रखना है कि जो एनामल लेयर है, जो हमारा नॉर्मल हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं उसके ऊपर फ्लोरीन की
फ्लोराइड की लेयर आ जाती है जिसको रेजोल्यूशन नहीं होने देती। इसमें मैं आपको जल्दी से एक और पॉइंट ये बता देती हूँ कि जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, हाइड्रोक्सिल आइंस होते हैं। जब जो हाइड्रोक्सिल आइंस हैं उसके दोनों तरफ कैल्शियम होगा और दोनों तरफ फास्फोरस होगा। जब एक हाइड्रोक्सिल आइन निकल जाएगा तो उसको उस जगह को, स्पेस को फिल करने के लिए वहाँ पे फ्लोराइड आ जाता है, वो फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल बन जाते हैं। मेनली इसका ये होता है, एनामल के रॉड्स होते हैं, रॉड्स के अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं मिलियंस में। वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होता है वो, जब उसमें से हाइड्रोक्सिल आइन निकलता है, जब कोई भी एसिड फॉर्मेशन होती है उसमें हाइड्रोक्सिल आइन निकलता है, उसकी जगह फ्लोराइड आइन आ जाता है। जब फ्लोराइड आइन आ जाता है उसकी जगह तो वो उसको डिसॉल्व नहीं होने देता क्योंकि फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल बन जाता है। बेसिकली दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल केरीज। खैर टाइम हो गया लेक्चर ख़त्म होने का, ये मैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पूरा रिपीट करवा दूंगी। टॉपिक आज का लंबा था, पूरा कंप्लीट नहीं हो सका। नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारा जो लेक्चर है उसमें मैं कंप्लीट करा दूंगी। अब टेस्ट के बारे में आप सुन लें। टेस्ट का ये कि ये जो टॉपिक्स आपके हैं ये 2 टेस्ट के टॉपिक्स थे, लेकिन ये हमारा एक टेस्ट बीच में नहीं हो सका है पैंडेमिक की वजह से, इसलिए हम दोनों इकट्ठे किए हैं। आप लोगों ने अपने पास्ट पेपर्स बहुत अच्छी तरह करने हैं। हम टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है इसलिए अभी टेस्ट चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर आसान है। ओरल इंडिसेस, हाँ पूरा चैप्टर है, उसमें से मेन जो इम्पोर्टेंट है वही आएगा। परेशान ना हो, जो मेन आपको पता चल गया है, जो भी इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स में आप देख लें, क्वेश्चन आपका उसी में से आएगा, ठीक है। और ये है कि आपने जितने भी बुक के पीछे एमसीक्यूज हैं इन चैप्टर्स के, आपने वो सारे करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपने मेन अपने पास्ट पेपर के क्वेश्चन सारे करने हैं, आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, परेशान नहीं होना। इतना लंबा टेस्ट नहीं है, लेकिन ये जो टेस्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे इस टेस्ट में। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब के एमसीक्यूज और एससीक्यूज आपके पेपर में आते हैं। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो टीओएस में ना हो और इसके क्वेश्चन ना आते हो। नहीं, इंडिया की कोई परसेंटेज आपने याद नहीं करनी। मेरा लेक्चर आप लोगों के माइंड में होता है ना, मैं लेक्चर में कोई इंडिया की कोई आप लोगों को बता रही होती हूँ। इंडिया की कोई चीज़ आपने याद नहीं करनी, ना कोई टेस्ट में इंडिया की चीज़ आएगी। आपके जो टेस्ट है उसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। टेस्ट तो मैं अब आपको नहीं बता सकती ना, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आपने पीछे से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है सारी, पास्ट पेपर्स के सारे क्वेश्चंस करने, आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा खुद भी आप लोग सोच लिया करें ना कि इंडिया की चीज़ें तो नहीं पेपर में आ सकती। अगर बुक इंडियन है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसकी चीज़ें भी वो देने शुरू कर देंगे। अच्छा से टेस्ट तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। एमसीक्यू मिक्स्ड है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की होगी, आपने चैप्टर की रीडिंग की होगी, एमसीक्यू आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। कोई ऐसा मुश्किल एमसीक्यू नहीं है। कॉन्सेप्ट होगा तो एमसीक्यूज हो जाएंगे आपसे। एससीक्यूज तो बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी एससीक्यूज हैं। टेस्ट मैंने बहुत आसान बनाया है बेटे। बुक वाले तो एग्जैक्टली एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज आप बुक वाली प्रैक्टिस करोगे तो एमसीक्यूज मिलते जुलते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना तो पूछ लें। पढ़ें प्लीज़, अच्छा सा पढ़ें। ऑलरेडी आपको पता है हालात क्या चल रहे हैं। अब इसमें ये हो कि एटलीस्ट आप लोग घर में बैठ के अच्छा सा पढ़ लें तो हमारी भी एफर्ट चले। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। कुछ पूछना हो तो आप लोगों मैथ के थ्रू मुझसे पूछ लीजिएगा।